श्री 108 स्वामी कल्याण गिरी जी महाराज, डेरा स्वामी सिंगारा गिरी जी महाराज, सतगुरु गद्दी तलौदा साहब जम्मू। गुरपुरे बेअंत वड्याई, नाम जपन जग कारे लाई। गुरपुरे बेअंत वड्याई, नाम जपन जग कारे लाई। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का दिन बहुत मुबारकबाद है। आज जो पर्व मनाया जा रहा है बहुत ही विशेष है, बहुत ही आगामी है, अगोचर है। पार ब्रह्म पिता परमेश्वर जो सारी कायनात का मालिक, मखलूकात का मालिक, जिसने खंड ब्रह्मांड रचिया, सृष्टि की सर्जना की, जिस 84 लाख दुनिया की उत्पत्ति हुई, जिस विच विशेष दर्जा मनुष्य जोनी को प्राप्त होया, और इस मनुष्य जोनी वास्ते एक गुरु परंपरा चलाई। और गुरु ने परमात्मा जी का हुक्म लेकर के इस मातलोक विच जन्म लिया। साढ़े ही तरह मनुष्य जोनी धारण की, 5 भौतिक शरीर धारिया, और साढ़े ही तरह इस दुनिया के विच विचरिया। लेकिन जो सतगुर के घर का सुनिया, जन जन के वास्ते मालिक ने जो सुनिया भेजा, इसे उसनों परमार्थ कमा करके किसी रिफार्म के कोल अपना तन मन तन का सौदा दे करके उस चीज़ को हासिल किया। वो नाम जिसनों खंड ब्रह्मांड, जितनी संसार की उत्पत्ति है, सारी की सारी नाम ही चला रहा है। ये भेद जिहड़ा है गुरु को जप करके इसको सिद्ध करना पाया, क्योंकि मातलोक विच आकर के इंसान जो है, इंसानी जीवनी जो बचपन तो जन्म तो स्टार्ट होती है, इस जीवन के विच बचपन आता, बुढ़ापा आता, फिर जवानी भी आती है, फिर बुढ़ापा आता है। ये तीनों पड़ावां दे विच कई खेल खेलता हुआ इंसान, कई कर्म कमाता हुआ इंसान मुड़ वापस चला जाता है। ये वापस कितने चला जाता है, इसनों कर्म निर्धारित करता है। इस करके जो गुरु परंपरा चलाई हुई है, जिसका अज का विशेष दिन है, जिसमें गुरु पूर्णिमा का नाम दिता गया है। गुरु जी का विशेष पूजा होती है, सन्मान होता है। जो रूहां गुरु की महत्ता जानदियां ने और रूहां विशेष तौर पर दिलों नमन होंदियां ने, अपने सतगुर तो कलहार जानदियां ने, क्योंकि रूहां नूं पता है सतगुर तो असीं की प्राप्त किया होया है। इस करके प्यारे गुरमुख आज के विशेष दिन से साध संगत नूं जितों तक भी मेरी आवाज़ सुनते हो, मेरे वीर मेरे भरा जिन्नियां रूहां सुन रही, उन्होंने सारिया रूहां अज के दिन दीयां लख लख बधाइयां।
ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਵੀ ਰੂਹ ਦਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਧੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮਖੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਕਰਨੇ ਜੋਗ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਵੀ ਹੋਕ, ਕਹੋ ਪ੍ਰਭ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਇਹ ਜਨਾਈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ। ਮੀਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੀਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਧਨਾ ਆਸ, ਜਿਨੇ ਆਤਮ ਚੇਤਨ ਕੀ ਉਹ ਧੰਨ ਭਗਵਾਨ ਰਵਿਦਾਸ। ਜਿਤਨੇ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਪ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਰਥ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਰੂਹ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੇ ਉਸ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਨਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਣਾ ਔਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਨਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜੋ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਸ ਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਭੀਤਰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦੌੜਾਂ ਛੱਡੋ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੌੜ ਲਗਾਓ, ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਯੁਕਤੀ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਰਫਤਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ, ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਜਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਗੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਦ ਲਈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਮੁੱਕਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਿਨ ਉਮਰ ਘਟੇਂਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਅਣਜਾਣਾ, ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਪੀਰ ਮੁਕੰਮਲ ਲੱਭਦੇ ਜਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਰੀਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵਿਚੋਦਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿੜਗੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੋ ਕੇ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਪੱਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਚਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਰਦ ਬਿਨਾ ਦਿਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦਰਦ ਪਿਆਰੀ ਛਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਦ ਕੁਛ ਆਮਦ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਦਿਨਾਂ ਗਲੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਟਕ ਮਜਾਜਾਂ ਦੀ, ਮਟਕ ਮਜਾਜਾਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਤਾਜਾਂ ਦੀ, ਰੱਖ ਸਾਂਭ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆ ਮੇਰੀ ਸੱਜਣਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਪਾਈ ਹੈ ਫਕੀਰੀ ਸੱਜਣਾ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਆ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆ, तो बड़े हिसाब किताब के नाल उन्होंने नाल अपना बर्ताव रखना पैंदा है। वो जे कहते हैं भी नाम जपिया तो जपना पैंदा है, जे आंदे सेवा करो तो सेवा करनी पैंदी है। अं कई बार कहते हैं भाई तेरी सेवा ही हुई क्या सेवा करी, तो आज्ञा का पालन करना पैंदा है, उसकी रजा में रहना पैंदा है, उसके अगे किंतु परंतु नहीं करना पैंदा। कहते एक फकीर, मैं अंदर भी वो गल सुना रहा सी कि जो बख्शिश होंगी है तो उसके पिछे बहुत बड़ा एक राज छुपिया होता है, और बख्शिश वही फकीर वाली है, वही गुरु वाली है, जिसको गुरु कहते हैं ना, बख्शिश वही चलती है, सिर्फ अंदाज बदल जाता है। किरपा हुई, किरपा का तरीका भी वही है। एक फकीर क्योंकि उन्होंने मतलब है सेवा करता है संगतां की, संगतां आईयां, पैसा कोल है या नहीं है ये नहीं है, पर संगत की सेवा जरूर करनी है। संगत आई, संगत की सेवा लिए हुण लंगर भी चाहिए है, चाह पानी भी चाहिए है, खंड पत्ती भी चाहिए है। दौड़ के दुकान तो फड़ लैनी पई, तेन मैं पैसे बाद दे जाना, वो इतना करते करते आसों पासों सारों धार चुक लिया, संगतां की सेवा में चला दिता। हुण धार जिहड़ा शाहूकारां कोल लिया, वो किन्ना कि चिर बर्दाश्त करते, आखिर उन्होंने मंगना है। वो गल्लां करते पिंड काहदा बाबा तेरा इत्थे जिहड़ा बाबा रहिंदा है, वो पैसे धार लै जांदा तो मुड़ के दिंदा ही कोई नहीं है। इधर गल्लां गल्लां होण लग पियां, तो जिले बाबे नूं सुनेहा देना, बाबा वो फलाना कहता ही धार दे देना ही, वो कहता दे देंगे, किहड़ा इत्थे मुश्किल दे देंगे। वो सुनते सुनते काफ़ी समा हो गया, एकदम सारे जिहड़े धार करता ही ना, जिन्होंने धार लैना ही बाबे कोल, वो एक दिन सारे ही आ गए, कहता अज बाबे को धार लैके ही आना है, ਇਹਨੇ की ड्रामेबाजी पाई दी है, ये अगे अगे तोड़दा रहंदा, गल्लां बातां करी जांदा है, बने का बाबा तो धार लै लै खाई जाता है। तो खंदा थोड़ा है, संगतां दी सेवा करता है। एक दिन सारे आ गए, तो 15-20 जने को धार लेता है, आ करके बह गए, कहता बाबा साडा धार, कहता बह जाओ मिल जाता है। वो सारे बह गए, कहता बह जाओ मिल जाता था धार। बाबा इधर बह गया, सामने संगतां बह गई, धार लैण वाले बह गए, सारे कहने भी आज धार लै जा। बाबे ने कहा जा बह जाओ, लैण वाली तां ही कहा जाता जे कोई देना हो, नहीं तो पता काल आया, कल आई या परसों आई। तो प्यारे गुरमुखो काफ़ी चिर हो गया, वो बाबा बोले नहीं करता कुछ, तो बाबे का ध्यान कि सेवा वाल पिछा भैन की धार लैनी आए आ, पर मैं तो इन्होंने संगतां रूप ही समझना है। मेरा दिल करेगा तो मैं इन्हों की सेवा करा। उन्होंने धार की फिक्र नहीं भी ये धार लैना बैठे दे, उन्होंने ये फिक्र भी मैं इन्हों की सेवा करनी है, तो किस तरह करा, सारे धार लैने इतने बैठे, हूँ कि बुलावा मैं, एक मन में आ गया। प्यारे गुरमुखो, वो मालिक सच्चे पातशाह गुरु शब्द नाल जिहड़ी रूह जड़ी है, उन्होंने किस गली चों की
मिल जाना अगे कोई पता नहीं। तां ये कहते इश्क की गली में कोई कोई लंघदा, हर कोई नहीं लंघ सकता। ये परमात्मा के नाम की गली जी है प्यार की, ये लंघना सौखा नहीं है। गल्लां करनियां सौखियां, औखे पालने बोल, गल्लां सौखियां कर लेने, पालने औखे बोल हो जाते हैं। तो प्यारे गुरमुखो, फकीर के मन में यही है कि मैं इन्हों की सेवा करा, पर पल्ले पैसा नहीं है। और की बने, सारे खुसर खुसर कर रहे हैं। कितना चिर हो गया बैठे थे, बाबा नाम नहीं लैना पे का। वो की होया कि बाहर गली के विचों एक बच्चा थाल लेदा प्रसाद का, किहड़ा प्रसाद, पतीसे का, वो बेचण दिया। पतीसा ला लो पतीसा, पतीसा ला लो पतीसा। ते बाबे फकीर ने मारी झांती, देखा थाल भरिया, तो वह कहना काका हो रहा और जल्दी आ जल्दी। कहना बेचना है, कहना जी बेचने वास्ते रखे है। अच्छा, कहना किन्ने पैसे, कहना इन्ने पैसे, कहना जिन्ने बैठे सारे वंड दे थाल। बच्चा खुश हो गया, मेरा अज माल एको जगह पे गया यार, आप हुण जाके मौजा करनी, खेडा मलांगे। उन सारे वंड दिता, 2-3 पीस बचे, वो बाबे लागे रख देते। बाबे ने एक पीस चुक्या, उन्होंने भी देता, कहता लै तू भी प्रसाद खा लिया। उन्हें भी खा लिया, बह गया। जिसले बह गया 2-3 मिनट होए, कहता बाबा ओ बाबा मेरे पैसे दे यार। कहता और जिथे इन्होंने मिलने तभी मिल जाते, ये भी सारे लैन वाले बैठे हैं, जिथे इन्होंने मिलने तभी मिल जाएंगे। बच्चा ही गल नहीं समझ पाया कि बाबा की कह, चुप कर गया। तो 5 मिनट बीते, कहता बाबा पैसे दे, तो बाबे को कोई गल, वो भाई जिथे इन्होंने मिलने उसे तभी मिलने। हूँ वो तो बर्दाश्त करी जाते, बच्चा कितना बर्दाश्त करता, बच्चे की अपनी कोई मजबूरी होएगी। तीजी बारी बच्चा उठ के कहना बाबा पैसे दे दी यार। बाबा फिर वो गल कहता, भलिया तेन आख्या नहीं मैं, जिथे इन्होंने मिल गए उसे तेन मिलने, बह जा। फिर बच्चा बह गया। बच्चा बिच थोड़ा गुस्से चाहिए, मेरा पैसा मेरा सारा माल भी खा लिया, तो पैसा भी नहीं दे दिया। उठिया, चौथी बारी उठा, 2-3 बारी हो गया, मैं चौथी बारी उठिया। कहता बाबा पैसे दे दे, नाल अथरू एडे मोटे घेरे, बाबा पैसे दे दे। मेरी घर मां भुखी है, मैं यही पैसे जाके राशन पवाना है, तो फिर मैं रोटी खानी है, तो फिर मेरी मां ने रोटी के पैसे दे दे बाबा। अखों गिरी है बाबा, चला की करे उसे। बाबा ने अखियां मीटियां, की भाना वरत्या, वो देखते देखते एक बंदा आया, उसने एक थैली बाबे के अगे चढ़ाई, बाबा के चरणों में ही बह गया। बाबा ने उन्होंने प्रसाद दिता, उन्हें प्रसाद खा लिया। जिसले प्रसाद खा लिया, तो प्यारी साध संगत जी, वो प्रसाद खा के मत्था टेक के बाबा चला गया। जिसले बाबा चला गया, तो कहना काका हो आ देख की है गुदरी च, गुदरी खोली, तो कहना बाबा मोहरा, ये मोहरा है। कहना वंड दे सारे एक एक, जिन्हें भी आए सारे वंड दे एक एक। हूँ देखा तो सारे वंड दित्तियां, वो 2 मोहरा बच गई। कहना बाबा 2 मोहरा बच गई, कहना तू जान। बच्चा खुशी खुशी खुश हो गया और लैके घर चला। वो जो 15-20 जने बैठे ही ना, वो एक बंदा जरा उठा अपनी सियानत दसना, कहना बाबा सानू 5-6 घंटे होए बैठे, तो कोई चढ़ावा चढ़ा नहीं तेन आया। 5-6 घंटे हो गए मैं बैठे, तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ, तो कोई चढ़ावा चढ़ा नहीं आया। वो बच्चा एक आया, तो उन्होंने पैसे मंगे अपने, ता करके कहना कोई आया, तो फिर सानू चुकता होया। बाबा बड़े सहज नाल बोले, कहना भाई जी तुम ठीक कहते, तुहानू 4-5 घंटे होया बैठे, कोई नहीं आया, पर जिस ढंग नाल बच्चे ने मंगे ना, तुहानू मंगे नहीं है।
जिस हिसाब से बच्चे ने मंगे ना रो रो के, जे कि कोई भी तरह मंगते तो शायद कोई आ जाए। देखो बड़ी बड़ी गल, गुरु का दरबार सजिया होए ते गुरु खाली नहीं जान लगे। बस मंगला मंगण तो की शर्माना, पर की मंगना प्यारे। मंगण तो पहला सोच समझ कर ली कि मंग की रहे। बच्चे ने मजबूरी सी कि बाबा वही पे है ना, मैं लंगर ले आना, घर जाके मां भूखी है बनाएगा तो खाएगी। इस हालात को महाराज बर्दाश्त नहीं कर सके। महाराज को भी चलो दुख बड़ी अदालत गुरमुखो आही सारे कर्मां दे चक्कर च बजे हुए हैं, कर्मां दा लैन देश बैठे हुए हैं। पता नहीं केड़ा कोई जी उठ के रो रो के अरदास करते साडा सारे दा धार्मिक हो जाए। वो तो महाराज कोई ऐसी रूह होवे जो माल के नाल जुड़ी होवे। एक ही है गुरु परंपरा, जो गुरु दे दसे हुए हुक्म अनुसार जो रूह विचरती है, आज्ञा का पालन करती है, नाम की कमाई करती है, जब अभ्यास करती है। उन्होंने रूहां पूछो दे कि जिस दिन उन्होंने प्रकाश नहीं होता, जिस दिन उसनों उन्होंने व्यापकता देखो, बाबा अज कि गलती हो गई, अज की हो गया। और वहां तरले पांदियां, वास्ते पांदियां, रो अथरू पांदियां, वो किसी को दोष नहीं दिंदियां। दोष ना कहूं दीजे, दोष कर्म अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दो वर्जना। इस तरह फकीरी कमांदियां ने और फकीरां कोलों गुरुआं कोलों अपने मंगियां मरादा पाउंदियां ने। इस करके प्यारे गुरमुखो आओ आज इस वडभागे दिन ते गुरु का शुकराना करिए, गुरु का मान करिए, सम्मान करिए, जिस दे हाथ में सारा सारा कुछ, जिसनों असीं अपना तन मन धन सौंपिया होया है, और वहां बेफिक्रमान हो जान। ये तन मन धन का सौदा जिन्होंने सच्चा किया होया है, उन्हां रूहां नूं फिक्र करने की कोई लोड़ नहीं। जिन्होंने कच्चा सौदा किया है, नाम तन मन धन सौंप गुरु के पास, तिस सेवक के कार्य सब होन रास। गुरु महाराज जी क्या करते सन, सौदा पक्का वो हुंदा है, सच्चा वो हुंदा है जो गुरु नूं असीं सब कुछ अर्पण कर दिंदे आ ते मगर कुछ नहीं रखते। फिर जीवन चलता है, रूह नाम जपदी है, रूह सिमरदी है, सेवा च अपना वक्त गुजारती है, सेवा विच अपना जो सतगुर का हुक्म है उस कार को मानती है। सतगुर की सेवा नूं भाग लाते हैं, उसके भजन नूं भाग लाते हैं, और उहदे दे विच एक ऐसी अनंत की शक्ति जाग जाती है जो यही कहती है कि जो गुरु करे वही हो। प्यार विश्वास के विच जो रूह भेज जाती है। अज भी दास कहता कि फिक्र करने की कोई लोड़ नहीं, जे सिर लाता तो लत जाए कोई गल, जे जान जाती है तो जाए कोई गल नहीं। मेरा बचन नहीं जाना चाहिए, गुरु का बचन नहीं जाना चाहिए, मेरा सिक्की सदगुरु। इस करके प्यारे करो भाई, कमाई जी है गुरु जी ने जिस नाल सौदा किया होया है, और गुरु का सौदा बड़ा सच्चा सुच्चा है। उसनों वर्त करके देखो, उसनों समझा करके देखो, विचर के देखो, और तुहाडा मार्ग दिश करेगा, तुहानू मुश्किलों तो बचाएगा। अगर कोई नाम रू जपदी है, उस गुरु का पांदी बनेगा, सतगुरु जप। इस करके आज धन धन मेरे पिता सतगुरु स्वामी खजानगिर जी महाराज जी आज गुरु महिमा गाते होया, गुरपुरे की व्यंत वडियाई, नाम जपन जग करे लाई। गुरु दुनिया ने की कर रहा है, गुरु गुरु रू गु मैंने अंधेरा, रू मैंने रोशनी। असी जितनियां भी संसारिक रूहां हाँ अंधेरे में फसिया हुई हैं, और जिन्हां जिन्हां नूं गुरु मिल जाता है पूरा
पूरा उन्होंने इस अंधेरे विचों गुरु अपनी रोशनी के नाल कढ़ लेंदा है। गुरु की है? गुरु एक जलता हुआ दीपक है जो आप जलकर दूसरों को रोशन करता है। अपना कुछ भी हो जाए, बीमार पै जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसका संदेश जिहड़ा संगत प्रति वो नहीं बदलता। वो कहता नहीं घबराना नहीं, दुख सुख है जिंदगी दे गहने, बेशक सानू अपनाने पैने, हुक्म उहदे नूं जो मन लैता कारज आदे रास, सुख वेले शुकराना नहीं सकते, दुख वेले अरदास, हर वेले सिमरन कर सकते, खाली ना जाए स्वास। गुरु हमेशा यही कहता, भाई दुख चाहे वक्त दुख का है, वक्त सुख का है, वो दोनों ही तो समान जा। जो दुख मालिक ने भेजा तो सुख भी मालिक ही भेजता है। इस करके प्यारे गुरुमुखो, ये सारा का सारा तुहानू सानू तां ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਸੇਵਾ ਇਹ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪਰਮਾਰਥ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹੇਗਾ ਵਾਹ गुरु, वाह गुरु, तान साध। मीरा ने क्यों किया है? वीरा सतगुर देव की करे बंदना आस, जिन आत्म चेतन की धन भगवान रविदास। किथे उन्होंने लोकी चमाह चमार कह के बुलाते हैं, अज राजपूता घराने की लड़की उन्होंने भगवान का दर्जा दे रही है। क्यों? क्योंकि गुरपुरे की व्यंत वडियाई, नाम जपन जग कारे लाई। उसने की महाराज ने दसिया, उसनों नाम जपन दे कारे ला दिता, नाम जपन दे कारे ला दिता। और जो उसने नाम जपिया सिमरिया अपने भीतर अपने घट विच आदि अंत एको अवतारा, सोए गुरु समझियो हमारा। जदों अंदरों उस शब्द दे नाल जुड़ी रूह, उस शब्द ने अपना निज स्वरूप दसिया, तो फिर आखिया इतना रौला पई जाता है। इतना तो साडे वर्गे शरीर ही होंदे आ, साडे तुहाडे वर्गे शरीर ही होंदे आ। पर जदों सिमर के नाम जप करके गुरु की आज्ञा अनुसार जब चलना पैंदा है, तो जो गुरु के कहने से रूह जाती है उस मंजिल दे विच, उस सिमरन दे विच, ਤਾਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਬਿਰਤ ਵਡਾਈ, ਨਾਮ ਜਪਨ ਜਗ ਘਾਰੇ ਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹ ਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, 5 ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਲਕਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੜੇ 84 ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸੀ ਸਰੂਪ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਚਲਾਂ। ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। और गुरु महाराज यही है कि रूह नाम जपन के कर्म ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ अपने निजता हो जा सके। इस करके धन धन पिता स्वामी जानकर मेरे आदरणीय सत्कार जो मेरे दाता पुरख, उन्होंने केवल एक ही संदेश सानू सारे जग को दिता है कि नाम जपन जग तारे लाए। जो गुरु का संदेश है उस संदेश को अपने हिरदे में वसा करके उस कर्म को कमाना है जिस दे कर्म कमाया साडा गुरु सतगुरु खुश होएगा और सानू साडे अपने घर का राह दिखाएगा। हाँ जी, गुरु ना गरजी बाकी गरजी, गुरु हम दर्दी नहीं फर्जी। आज गुरु पूर्णिमा के विशेष उत्सव ते गुरु का महत्व जो है, गुरु ना गर्जी, गुरु ना फर्जी। गुरु को कोई गर्ज नहीं छड़ना।
गर्जी नहीं है, गुरु फर्जी नहीं है। वो साडा सच्चा हमदर्दी है, वो साडा सच्चा हतैसी है, उसनों साडी फिक्र वा। कहते जिहड़ा तुहाडी फिक्र करता ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ, चाहे रिश्तेदार, चाहे कोई सत्संगी है, चाहे कुछ भी है, जिहड़ा तुहाडी फिक्र करता, तुहाडे दुख विच आके तुहाडे नाल खड़ा होता है, वो तुहाडा हमदर्दी है। तो इत्थे गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि साडा गुरु तो बगैर कोई भी नहीं। गुरु सच्चा हतैसी है, साडा हमदर्दी, जो हमेशा अपने रूह की खैर चाहता है। अगर वो कितने भटक जाती है तो उसको थोड़ा झिड़क भी लगता है। रूह भटक जाती है, रूह जी है लियो बेली हो जाती है रातों, तो रूह कदे नहीं समझते आवे तो रूह थोड़ा जा डांटता भी है। जिस तरह मास्टर बच्चे शब्द नहीं आ रहा तो स्टिक करता, थोड़ी उन्होंने थोड़ा तब बताया ताकि ये समझ जाएगा। लेकिन ये मत समझना कि गुरु ने अपने प्यार करके मेरे नाल इतना किया, नहीं ऐसा। जो गुरु की सानू तकलीफ च दिखता है, सानू कोई तकलीफ होती है तो सब को तकलीफ ज्यादा गुरु होती है। जान कर जो असं दुखी होते हैं ना तो सब का बड़ा दुखी गुरु होता है। ये सानू इसका नहीं पता, ये गुरु महाराज जानते। इस करके प्यारे गुरु गुरु के द्वारा आया हुआ गुरु तो ही छड़ देते हैं। मालका मैनू नहीं इस गल का पता, मैनू नहीं इस भेद का पता, तेरिया तू ही जाना, तेरी कृपा तू ही जाने और ना दूजा जाने, जिस बे कृपा करे तू अपनी सोई तुझे। बड़ी बड़ी बख्शिश है सानू 84 लाख जूना तो एक विशेष जन्म मिलया। ये बहुत बड़ी असीम कृपा सतगुरु की। इस तो बड़ी होर कृपा है कि सानू संगत मिल गई, संगत साधना चंगे कर्मां दे निशानी मिली साधुआं दी संगत। उन्हें तो सुनिया चंगे कर्मां दी निशानी मिली साधुआं दी संगत। सानू चंगे कर्मां दी निशानी मिली कि सानू संगत मिल गई, साधुआं संगत मिली उन्हां रहबरां दी, उन्हां गुरुआं दी जो परमार्थिक हैं, जो रूहानियत हैं, जो अध्यात्मिक खंड वाले, जिसने साड़ी रूह का इस श्री रूपी कैद जो पिंजरे जो कट के रूह को आजाद करना है, उस गुरु तो बलहार जाएगा। विशेष कृपा है सतगुरु की, और बड़ी कृपा है कि सानू संगत मिल गई। लेकिन संगत मिली तो और बड़ी कृपा सानू गुरु मिल गया। गुरु क्या मिलया? गुरु मिलया ज्ञान वाला, जिसको जो तो अं अपने साबन ज्ञान का दे छेती लिए कूड़ बेकार की कार। महाराज मैनू साबन दो, छेती साबन दो, मैनू किहदा नाम ते ज्ञान वाला, मैं अपने बकारा वाली गार नूं धो लवां। बहुत बड़ी कृपा हुई सतगुरु दी, गुरु मिल गया, पूरा गुरु मिल गया। और बड़ी कृपा हुई कि नाम मिल गया, नाम की लगता हो गई। गुरु ने मेरे ते कृपा की, गुरु ने मेरे ते बख्शिश की। मैं पापा नाल घिरी रूह, पापा नाल लिपटी रूह, गुनाह भरी मैं रूह नूं सतगुरु ने मेरे गल नाल ला लिया, मैनूं नाम की लगता करा दी ते आग्ञा की कि इस नाम का अभ्यास करना। लेकिन मैं पापन अभागी नाम ना जप सकता, मेरा दोष। जिथे इतनिया कृपावां का मैंने पाकर सतगुरु ने अपना बनाया, मैं उधर एक कर्म नहीं कर सकी। आज जितना जो नाम की लई तो सारे ने नाम की चाह, पर नाम की कमाई हर कोई नहीं होगी, ना ही कर पाया, ना कोई लगता कि मतलब दिलचस्पी लगता, क्योंकि गुरु जाने, गुरु अपना पूरा मने ही नहीं। इस करके ही भजन नहीं करता। जिस दिन तेन गुरु की महत्ता का पता लग गया तेरे को, फिर तेन पता लगा गुरु क्यों कहता कि इतना कर।
ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਸਤਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਵਰਕੇ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 84 ਦਾ ਆਵਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰ ਕੀ ਲਖੋ ਦਿਆਲਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਉਪਸਾਰ, ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦਾਸ ਦੀਏ ਜਗਤਾਰ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਭਲਿਓ ਨਾਮ ਜਪ ਲੋ, ਸੇਵਾ ਸਬਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਕੱਢ ਲਓ। ਵਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਚੇਤਾ ਹੋਰ ਨਾ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੇਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇਕੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੇਖੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਗੇ, ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਬੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੂੰ ਭਜਨ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਜਰੀਏ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜਰੀਏ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਮੰਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੋ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ। ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ, ਬਹੁਤ ਰੋਈ। ਉਸਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ਵ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਸੰਤਾਂ ਪਾਸ ਲੈ ਗਈ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜੋੜੀਆਂ ਕਰ ਲਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਤੋਂ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਜੇ ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮੈਂ ਤੜਪ ਵੀ ਜਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੜਪਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹੇਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਪਾਣਾ ਵਰਤੇ ਆ ਸੰਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਕਤ ਮੈਂ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹੁੰਦੇ ਸੰਤ ਦਿਆਲ, ਮੌਜ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਹੁੰਦੇ ਪਾਰੇ ਉਪਕਾਰ, ਮੌਜ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਸੰਤ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਪਿਆ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ, ਕੌਣ ਮਾਂ? ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਛੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬੜਾ ਬੜੇ ਭਲੇ ਕਹਿ ਤੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੁਕਾਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਫਸਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੱਲੇ ਮਾਰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੁਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਫਸੇ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਗਿਆ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਪਤੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਦੇਣਾ ਭੋਗੇ ਦਾ ਐਸਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਨੇ।
वरना नहीं खाना धिया पुत्रा चक्कर च प्यार हो गया। मैंने उन्होंने नहीं बुलाया, और मैं नहीं बुलाया, वो फलाना दिन हो गया, टिकड़ा हो गया, उन्हें पैसा नहीं दिता, उन्हें फलाने ये चक्कर पै के अपना जीवन व्यर्थ पा के चला जाएंगे। जुग जुग जी दुआ खुश रहन बच्चे, मौजा च रहन, मैंने भी मौज च रहन। भाव मैं अपने कार्य लगे ना सतगुर तेरे नाम से व्यापारी जग से विरले मैं ना विरलिया च मैं थां बनाना सतगुर का नाम जग के सिमरन कर। पहले गुरमुख सतगुर ने बड़े 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 साढ़े भुलेखे कढ़े ने, पर असीं फिर भी भुलेखिਆਂ च पई फिरते। आज जरा दिन बहुत पवित्र है, बहुत पुण्य है, और सुभाविक तौर पर साढ़े जठेरिया की पूजा भी हो रही है। जठेरे बेचारे कई रुआ जठेरे मत्था टेक के वापस आईया ने जिन्होंने सत्संग ना लगा। कई बेचारे कहते साढ़े दूर जठेरे है, अभी उत्थे नहीं जा सकते, अं लागे चल गए, दो जठेरे बनाए, एक ने उधरों बाह फड़ी, एक ने उधरों बाह फड़ी, खिच दूर पई हुई जठेरे चलो बेचारे अपना मतलब है जिते सानू सूट मिलता ही उत्थे जाओ। एक दूर गई है, कहते साढ़ा घर ही है, घर ही बनाना है यार, थोड़े कोई उत्थे मत उत्थे मनाओ जाकर, अं घर ही बनाना ना मनिया होया है। मनना कि साढ़े कर्म है, कर्म की गल रब राजी सब राजी, जो रब नहीं राजी तो होर राजी की करोगे। भज भज वड़दा मंदिर मसीती, जेड़ा अंदर वड़िया उन्होंने वड़दा ही नहीं, जेड़ा अंदर बैठा रब उन्होंने ही वड़दा ही नहीं, तो बाहर भज भज बैठा। ये भुलेखा, लेकिन जिसने गुरु ने सिद्ध कर लिया उसका सब कुछ सिद्ध हो गया। जदों सतगुरु दास महाराज सच्चे पातशाह जी ने अपने गुरु की खातर, शब्द की खातर, अपने आप की खातर कौम से भीड़ बनी, इल्जाम लगे, लेकिन डरिया नहीं, कहता झूठ पखंड की पूजा मैं नहीं करनी, मैं तो सच की पूजा करनी हूँ। वो सिर्फ लोगों के भरम कटना चाहता से गुरु महाराज, इसे तरह धोती टिक्का तरपम छाता लाता तो दूसरे धर्म के लोगों को चुभता सी भी साढ़े कर्म क्यों कमाता है। तो कहते हैं जिस वक्त उन्हें सच्चाई याद की, कहता उन्होंने कहता मैं तो चार युग हो गया पाते, कहता गुरु ने ना गुरु महाराज की विशेषता कृपा समझो कितना गुरु महाराज ने अपने परमात्मा, और जो परमात्मा खुश होगा तो की होता है, कहता मैं तो अपने सत्ते से रहना है, मैं नहीं पखंड की पूजा करनी। काम वही उन्होंने वर्गे है, उन्होंने बथेरा कहना तुम एक जने भाई का धागे का मैं तो चार युग होया पाते, ब्याह तो हो गई होते, कहते 10 वेर कट के कहते ने फिर रंडी मार के जो अपनी धारा कटिया बगिया तो सच्चाई ही ना आऊँ पैदा करूँ, आऊँ पैदा चाकू देखो, उन्होंने पता है ना मेरे अंदर है, उन्होंने पता ही मैं चार युग आया हाँ, मैं कर्म किया है चार युग आके, त्रेता च आया, द्वापर च आया, सतयुग च आया, कलयुग च आया, उन्होंने पता सी वो आके उठ गया सी। पहले च रवि प्रताप राजा जी, दूजे से रोम ने की संबोध ऋषि जी, कलयुग च रघुदास महाराज जी, पता सी मैं हो गया। तो जो कटिया खून दी पवित्र ध्यारा पाइया तो उपरों की वर्षा आई, उन्होंने देवी देवते की वर्षा आई। क्यों वर्षा करने की लड़ पई उन्होंने, जिहड़े देवी देवते की पूजा करते हैं, जे तुसीं गुरु नाल सही निभा लो, अपनी गुरु नाल सही निभ जे, निभी रहे मेरे गुरु चरण नाल प्रीति निभी रहे, निभ जाए तो तुहाडे ते गुरुआं दी वर्षा आएगी, तुहाडे ते सारे जितने देवी देवते खुश हो के तुहाडे ते किरपा दो हत्थां नाल करनगे इस तरह। पर असीं ते आप ही नहीं खलोते एक जगह, एक कहना मैं इत्थे जाना, दूसरे कहना उत्ते जाना, दोनों बना है कि नहीं, साडी मर्जी है।
ਮੰਜ਼ਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਤਲਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲ ਸਿਆਲ ਤੇ ਪੋਹ ਨਹੀਂ। ਮੰਜ਼ਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਤਲਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਖੀ ਤਖਾਂਦਰਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੰਜ਼ਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਤਲਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲ ਸਿਆਲ ਤੇ ਪੋਹ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਸੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ, ਤਾਈਓ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਤੂੰ। ਕਸੂਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਤਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਲੱਭਦੇ ਤੈਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਦੋ ਚੰਦਰਮਾ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਖਰਾਬ ਕਿਸੇ ਚੰਦਰਮਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ, ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਭੱਜ ਕੇ ਉਸ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਇਆ। ਇਲਾਜ ਕਿਹਦਾ ਕਰਾਇਆ? ਅੱਖ ਦਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੀ, ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਛੁਟੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਆਸਨੋ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਉਰਸਾ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਆਸਨੋ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਉਰਸਾ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕੇਸਰੋ ਲੈ ਛਟਕਾਰੇ। ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਛੁਟੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਚੰਦਨੋ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਚੰਦਨੋ। ਦਸ ਜਪੇ ਨਾਮ ਲੈ ਤੁਝੇ ਕੋ ਉਚਾਰੇ। ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਛੁਟੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤੇਲ ਹੈ ਮਾਰੇ ਪਸਾਰੇ। ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਛੁਟੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ, ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ। ਭਇਓ ਉਜਿਆਰੋ ਪਵਨ ਸਗਲਾਰੇ। ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਛੁਟੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤਾਗਾ, ਨਾਮ ਫੂਲ ਮਾਲਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤਾਗਾ, ਨਾਮ ਫੂਲ ਮਾਲਾ। ਭਾਰੇ ਅਠਾਰਾ ਸਗਲ ਜੁਗਾਰੇ। ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਛੁਟੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰ ਰਖੋ, ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰ ਰਖੋ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਤੂਹੀ ਚਵਰ ਡੁਲਾਰੇ। ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਛੁਟੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਦਸ ਅਠ ਸਠ ਚਾਰੇ ਮਾਗੇ, ਦਸ ਅਠ ਸਠ ਚਾਰੇ ਮਾਗੇ। ਇਹ ਬਰਤਨ ਹੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੇ। ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਛੁਟੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ
स्वामी जी